today's session we solve some example which is related to the viscosity. We start with the first example. Illustration number 10.9. Now what is the problem statement? Okay, a metal block of area 0.1 meter square is connected to the 0.010 kg mass as shown in the figure. Okay, so there the mass is connected to the 0.01 kg mass. Okay, and passes over the ideal pulley. This pulley is ideal right now as shown in figure. A liquid with a film of thickness 0.30 mm. So this film thickness, consider this film, this thickness is supposed to be x. How much it is? 0.30 mm. Consider it is a dx. Okay, a small thickness of the fluid film placed between the block and the table, where when the block is released and moves to the right with a constant speed. तो उसकी स्पीड कितनी है? कांस्टेंट. इट्स मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, मतलब ये इसकी स्पीड v कांस्टेंट है. कितनी है? 0.085. सो v इज इक्वल टू 0.085 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कि ईटा इज इक्वल टू व्हाट? ओके, सो एरिया आपके पास है 0.1 मीटर स्क्वायर, मास आपके पास है 0.010 kg as thus given to us. Now the velocity is constant. Velocity constant मतलब f net is equal to 0. So right hand side force is equal to left hand side force. So you just draw the force right hand side. Here the force is T. So here the force is what? Viscous force Fv. So right now this T is equal to what? Fv. So how much T? Thus mg and the T. Right now constant speed. So mg is equal to what? T. So mg is equal to what is the value of Fv? So Fv is eta a dv by dx. Okay, so d velocity of upper layer of fluid is equal to velocity of block हो जाएगा. So dv आपके पास है 0.085 meter per second and thickness of fluid layer, that's dx, and that is 0.30 into 10 raised to minus 3 meter, right, in a SI units. So put all this value into this equation and find eta. So remaining calculation is in homework. आप इस equation से इसको easily solve कर सकते हो. Okay, take the g is equal to 10 meter per second square. So after calculation you get this answer. Eta is equal to 3.45 into 10 raised to minus 3 Pascal into second. Okay, चलो everybody note this. Let's come to this next one. The illustration number 10.10 from the textbook. Again we discuss the same thing. The terminal velocity, right now this example which is related to the terminal velocity of a copper ball. Right now that is given for a copper ball of radius is what? 2 mm. So write down r is equal to 2 into 10 raised to minus 3 meter falling through a tank of oil. मतलब ऐसे tank है आपके पास, मान लो this is what? A tank. Inside the tank this type of ball is moving down with the speed vt, terminal velocity. Okay, this type of data are given to us and falling through the liquid, and the speed कितनी है? 6.5 centimeter per second. So vt is equal to 6.5 centimeter converted to meter, so 10 raised to minus 2 meter per second. Compute the viscosity of the oil. तो आपको फाइंड करना eta is equal to what? Eta is equal to what? Of the oil. The density is given us, density of oil, मतलब density of fluid is equal to 1.5 into 10 raised to 3 kg, and density of copper, मतलब density of sphere is equal to 8.9 into 10 raised to 3 kg per meter cube. So eta फाइंड करना है, तो vt का इक्वेशन यहाँ पे लिखो, आपका आंसर हो जाएगा. So what is the equation of vt? So terminal speed vt is equal to 2 by 9 r square g upon eta into rho sphere minus rho fluid. See, vt known, r that is a known data, g you just take g is equal to 10, so 10 meter per second square. Eta find करना है, rho s, everything is given to us in this example. So find eta by yourself.
So the remaining calculation is in homework. Okay, so after calculation you get this eta is equal to 0.99 Pascal into second. Okay, chalo, not this, then after we come to this next one. Let's see next example. Example number 10, illustration number 10.11 from the textbook. Again the one illustration. A flow rate of water from a tap of a diameter 1.25 centimeter is 0.48 liter per minute. ओके मतलब डायमीटर कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, सो 10⁻⁻² मीटर. फ्लो रेट मतलब क्यू, इट इज इक्वल टू 0.48 लीटर पर मिनट कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब पर सेकंड, सो इनटू 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन मिनट मतलब 60 सेकेंड. सो दिस इज द क्यू. ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन टू अस. So eta is equal to 10⁻³ Pascal into second, 10⁻³ Pascal into second. After some time the flow rate is becomes 3 liter per minute, मतलब इसको आप Q1 बोल दो suppose. Okay, now after some time Q2 is given to us, what is 3 liter per minute, so 3 into 10⁻³ minute मतलब 60, so that is a meter cube per second. And convert into SI units. Okay, calculate the characterize the flow in the both this flow rate. मतलब इसका फ्लो कितना होगा, तो ईटा तो दोनों केस में सेम ही होगा, डी भी सेम होगा, तो यहाँ पे भी डी कितना होगा, डी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻² मीटर, और ईटा भी यहाँ पे भी कितना होगा, सर सेम वन 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड. दस एवरीथिंग इज सेम. कैरेक्टराइज द फ्लो मतलब व्हाट, आप रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करो, फाइंड Reynolds number. If Reynolds number is less than 2000, you write the answer, it is a laminar. If it is a greater than 3000, you just write it is a what we can say, that's a turbulence. Okay, so this is our answer. So Reynolds number कैसा find करना है, so Rn is equal to rho Vd upon eta. So right now water is given to us, water है तो this rho is equal to 10⁻³ kg per meter cube, so that's not a problem. V not given to us, so Q is equal to always क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी. तो अब इसमें से V is equal to Q by A रख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा Rn is equal to rho V मतलब दस Q by A कितना होगा, दस A is a π/4 d square into V, तो Q by π/4 d square into d अपॉन ईटा. इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा Rn is equal to 4 is comes into the numerator and 1 d is cancel out. Okay, so 4 rho Q upon pi d into eta. You just simplify this term. The 4 is comes into the numerator, so 4 rho Q and d is cancelled. See this d and d is cancel out, so pi d is comes in denominator, so pi, so this is, so आप इसमें वैल्यू रखो, Rn1 फाइंड करो, सो Rn1 फाइंड करो, इस इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 4 रो Q1 अपॉन पाई डी ईटा. ओके, इसमें से फाइंड करो, और Rn2 कितना होगा, Rn2 इज इक्वल टू 4 रो Q2 अपॉन पाई डी ईटा. इसमें से अब Rn2 फाइंड करो. Okay, so all these values are given to us, only just put the value into this equation, you get this answer. So after calculation get this is Rn1 is equal to 815 and Rn2 is equal to 5095. So first flow, that is a laminar one, first flow is what, laminar, and second flow is what, turbulent. Okay, so this is the type of flow which is given to us right now. Okay, so everybody note this. Let's come to this next one. Example number 10.13 from the textbook exercise. Okay, now what is this given data, a glycerin flows steadily through the horizontal tube of the length 1.5 meter. मतलब ऐसे कोई आपकी पाइप है, मान लो ऐसे आपकी पाइप है, इसकी लेंथ कितनी है, L is equal to 1.5 मीटर एंड रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. चलो यहाँ पे डेटा लिखते हैं, सो रेडियस इज इक्वल टू 1 into 10⁻² meter, centimeter convert into
मीटर। ओके, द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन इज कलेक्टेड पर सेकेंड एट द वन एंड, मतलब यहाँ से कोई मान लो कि एंटर हो रहा है तो यहाँ से ग्लिसरीन आउट होगा, तो कितना गिवन है, दस इज 4 × 10⁻³ kg पर सेकेंड, मतलब ये मास फ्लो रेट गिवन है। सो एम डॉट, ये क्या गिवन है, एम डॉट गिवन है। एम डॉट कितना होता है, सो रो इंटू क्यू होगा, एक्चुअली रो ए भी होता है, मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ। एम डॉट क्या होता है एक्चुअली, दैट्स रो इंटू ए इंटू वी, बट ए इंटू वी मतलब क्यू, सो दैट इज रो इंटू क्यू गिवन है आपको, रो इंटू क्यू। और कितना गिवन है आपको, दैट्स एम डॉट, दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ kg पर सेकेंड। ओके, तो इसमें से Q मिल जाएगा आपको, सो Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ अपॉन रो। सो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन यहाँ पे गिवन है, सी 1.3 × 10⁻³ यहाँ पे रख दो आप, 4 × 10⁻³ अपॉन 1.3 × 10⁻+3। ओके, तो यहाँ पे आपको Q मिल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ये आपको क्या मिलेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपको Q मिल जाएगा। ओके, so that is a Q for you. So after calculation you get this answer, that is equal to 3.077 into -3 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपको Q मिला, आपने मास फ्लो रेट को आपने वॉल्यूम फ्लो रेट में कन्वर्ट कर दो। ओके, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, आपको फाइंड करना है कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। सो डेल्टा P इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो P1 माइनस P2 कितना होगा आपको फाइंड करना है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ ट्यूब। डेंसिटी गिवन है, विस्कोसिटी गिवन है, सो ईटा इज इक्वल टू 0.83 पास्कल इंटू सेकेंड। ओके, नाउ हियर वी कंसिडर द सिंपल फ्लो रेट इक्वेशन बाय द गिवन बाय द पोस्टुला, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस पोस्टुला इक्वेशन में आता है, तो पोस्टुला इक्वेशन का यूज़ करो आप। चलो, तो आपके पास ईटा है, आर है, Q है, तो Q का इक्वेशन कुछ ऐसा था आपका कोई भी पाइप में, तो Q इज इक्वल, दैट इज द पोस्टुला इक्वेशन। ओके, सो पाई इंटू डेल्टा P इंटू R⁴ अपॉन 8 ईटा L। सो आप इसमें से डेल्टा P फाइंड करो, सो डेल्टा P इज इक्वल टू 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴ इंटू Q। सी 8 ईटा L पाई एंड R, एवरीथिंग इज गिवन टू इन दिस इक्वेशन, सभी वैल्यूज में रखो, फाइंड करो। सो रिमेनिंग कैलकुलेशन इज इन होमवर्क। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट दिस आंसर, डेल्टा P इज इक्वल टू 975 into 0.37 Pascal. Okay, after calculation you get this answer. Chalo, everybody note this example number 10.13 from the textbook exercise. Let's come to this next one. Example number 10.26 from the textbook exercise again. Now this example is related to the Reynolds number. Okay, let's see. What is the largest velocity of the blood flow in a artery of radius 2 × -3? So R is equal to 2 × 10⁻³ meter if the flow must remain laminar. ये आप नोट करो। ओके, तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। फ्लो मस्ट रिमेन लामिनार मतलब व्हाट, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच द फ्लो is laminar called critical velocity। ऐसा हमने थियोरी में स्टडी किया है, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब आपको इसमें पूछा गया है फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी, ये आपको फाइंड करना है, इसमें सिंपल सा केस आपको गिवन। ओके, सो फॉर इफ यू वांट अ क्रिटिकल वेलोसिटी देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर लामिनार फ्लो। सो रेनॉल्ड्स नंबर मस्ट बी टेकन, इट इज इक्वल टू 2000। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है लामिनार फ्लो के लिए, रेनॉल्ड्स नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 2000, एनआर आप 2000 ले लो। विस्कोसिटी यहाँ पे गिवन है 10 सो इटा इज इक्वल टू 2.084 इंटू 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड। तो आप रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लिखो, चलो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू ρ/V अपॉन ईटा, तो मतलब यहाँ से डायमीटर मिल जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट 2r। तो इसमें से आप VC फाइंड करो, सो VC मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो आपको फाइंड करना है, सो VC इज इक्वल टू NR इंटू ईटा, NR इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डायमीटर मतलब 2 × R। आप इसमें सभी वैल्यू गिवन है, इसमें रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, सो कैलकुलेशन इज इन होमवर्क। एक और क्वेश्चन भी है, दैट इज द फर्स्ट वन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नाउ द सेकेंड वन,
B. What is the given data? What is the corresponding flow rate? उसकी flow rate कितनी होगी? So flow rate Q is equal to क्या होगा always AV. तो A कितना होगा यहाँ पे? That is a pi r square into velocity. Velocity तो VC है, तो velocity VC रख दो. तो pi r everything is given to you. Put this value and you get the answer. Okay, so remaining calculation is in homework. After calculation, you get this answer. VC is equal to 0.98 meter per second and Q is equal to 1.23 into 10 raised to minus 5 meter cube per second. Okay, so simple example है and it is given in a textbook. Okay, everybody note this. Then after we are comes to this next one. Let's see example number 10.28 from the textbook exercise. In a millican oil drop experiment, what is the terminal speed of an uncharged drop of radius? तो R आपको given है कितना? 2 into 10 raised to minus 5 meter and density भी given है आपके पास. So density rho is equal to 1.2 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Take the viscosity of the fluid, eta is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5 Pascal into second. How much the viscous force on the drop at the speed? आपको फाइंड करना है इसका viscous force कितना होगा, Fv कितना होगा. स्फीयर का विस्कस फोर्स आपके पास सिंपल सा इक्वेशन है, डायरेक्टली यूज करो, आपको इक्वेशन के बेसिस पे आंसर मिल जाएगा. विस्कस फोर्स का इक्वेशन क्या है आपके पास, विस्कस फोर्स का? तो सिंपल F विस्कस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. ओके, 6 पाई ईटा आर वी. आप इस इक्वेशन में सभी वैल्यू रखो, आपका आंसर मिल जाएगा. सो 6 नॉन है, पाई नॉन है, ईटा राइट नाउ गिवन है एग्जाम्पल में. सी दिस इज द ईटा. नाउ आर भी गिवन है आपके पास, बट वी कहीं पे भी गिवन है. तो कैसे भी करके आप वी पहले फाइंड करो, उसके बाद आप आंसर फाइंड करो. ओके, तो वी फाइंड करने के लिए आप टर्मिनल स्पीड का यूज करो. टर्मिनल स्पीड, सो Vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर जी अपॉन ईटा रो माइनस रो फ्लूइड. बट राइट नाउ फ्लूइड जो है वो आप एयर ले सकते हो, तो उसकी डेंसिटी इसके कंपेयर में आप नेग्लेक्ट करो, तो इसको आप 0 रख दो. ओके, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 होती है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी है 1200. सो 1200 माइनस 1 अप्रॉक्सीमेटली 1200 ही लिख सकते हो आप. ओके, सो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख दो. चलो, Vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर जी अपॉन ईटा इंटू रो. तो इक्वेशन 2 में से आप Vt फाइंड करो, और इसकी वेलोसिटी अभी Vt होगी, तो यहाँ पे भी इक्वेशन 1 में भी Vt रख दो. सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2 and find Fv. Find Fv. After calculation you get this. Okay, and calculation करके बाद आपको आंसर मिलेगा F is equal to 3.93 into 10 raised to minus 10 Newton. That's a very very smaller force which is applied on the drop. Okay, चलो everybody note this. Then after we comes to this next one. Let's see some additional example which is related to the viscosity. Now what is the problem? If two identical drop are moving with a constant speed are mixed up and find the new terminal speed of the new terminal speed in terms of original terminal speed. आपको मतलब ये theoretical calculation है, इसका इक्वेशन आपको याद रखना है, so that you are using this equation directly into the MCQ. ओके, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है, मान लो कि यहाँ पे ऐसे कुछ है कि आपके पास ऐसे 2 ड्रॉप्स है, इसकी रेडियस कितनी है दोनों की r, इसकी टर्मिनल स्पीड आप मान लो Vt, इसकी टर्मिनल स्पीड कितनी है Vt है. ओके, ऐसा आप मान के चलो, दिस टाइप ऑफ डेटा. नाउ दिस बोथ आर मिक्स्ड अप विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ लार्जर ड्रॉप. सो ऐसे लार्जर ड्रॉप बना, इसकी रेडियस आप मान लो कितनी r, और a अभी कुछ न्यू टर्मिनल स्पीड Vt डैश ले लो इसकी. तो आपको फाइंड करना है Vt डैश इन टर्म्स ऑफ Vt, आपको फाइंड करना है Vt डैश इन टर्म्स ऑफ Vt. सो Vt क्या लिख सकते हो, देखो Vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर जी अपॉन ईटा इंटू रो माइनस रो फ्लूइड. ऐसा लिख सकते हो, रो स्फीयर माइनस रो फ्लूइड. और Vt डैश क्या लिख सकते हो, Vt डैश इज इक्वल टू 2/9, उसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, सो r स्क्वेयर जी अपॉन ईटा तो सेम ही रहेगी दोनों केस में, रो माइनस रो फ्लूइड भी सेम रहेगा. टेक द रेशियो. सी ओरिजिनल
original terminal speed, and this is new terminal speed. Okay, now take the ratio. So by taking ratio, आपका आंसर क्या होगा? VT dash upon VT, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट R, सो इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. तो आंसर हो जाएगा VT dash इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r रेस्ट टू 2 इंटू VT. तो ये आपका आंसर होगा. ओके, बट हाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन द R एंड R? तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का अगर मिक्सअप होगा, अगर इन दोनों का मिक्सअप होगा तो आफ्टर मिक्सअप टोटल वॉल्यूम्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो आप आंसर इसका कैसे लिख सकते हो? टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन डायरेक्टली इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. इसका इनिशियल वैल्यू कितना होगा? तो 2 ड्रॉप्स है तो 2 इंटू एक का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. फाइनल में तो एक ही ड्रॉप है, सो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. सो आर क्यूब इज इक्वल टू 2r क्यूब. इसमें से r अपॉन आर फाइंड करना है. सो r अपॉन आर इज इक्वल टू 2 तो है ही, रेस टू 1/3. यहाँ पे भी ऐसा भी हो सकता है 3 ड्रॉप्स आर मिक्सड अप, तो यहाँ पे 3 रेस टू 1/3 आएगा. इफ 4 ड्रॉप्स आर मिक्सड अप देन 4 रेस टू 1/3 ऐसा होगा. ओके, ये तो जस्ट थियोरी है, बट इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा. जितने ड्रॉप्स मिक्सअप, मतलब इफ n ड्रॉप्स आर मिक्सड अप. ओके, तो यहाँ पे एक नोट क्या लिख सकते हैं? इफ n ड्रॉप्स आर मिक्सड अप देन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू n रेस टू 1/3 ऐसा होगा. कहने का मीनिंग कुछ ऐसा है. राइट नाउ यहाँ पे 2 ही लिया है, बाकी n ड्रॉप्स है तो भी आप इस थियोरी को इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, एंड देन यू गेट द फाइनल आंसर, एंड दैट इज वन थियोरी. यू रिमेंबर दिस इक्वेशन डायरेक्टली एंड यूज दिस इक्वेशन इनटू द MCQ डायरेक्ट. ओके, चलो नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. रेडियस ऑफ अ पाइप इज चेंज एज पर दिस इक्वेशन. R इज इक्वल टू R0 e रेस टू माइनस x/2. मतलब इसकी जो भी पाइप है उसकी रेडियस कुछ इस तरह से चेंज होती है. ओके, नाउ फाइंड द रेनॉल्ड्स नंबर across the section area which is separated by x is equal to 0 and x is equal to 2. मतलब आपने x is equal to 0 रखा तो कुछ रेडियस आपको मिलेगी. ओके, सो x is equal to 0 रखो, उसको R1 बोल दो. चलो सेक्शन 1. सो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R0 e रेस टू माइनस 0, मतलब e रेस टू 0. e रेस टू 0 तो 1 ही होगा. e रेस टू 0 तो ये हो जाएगा R0. और R2 क्या होगा? 8 x इज इक्वल टू 0 एंड 8 x इज इक्वल टू 2. सो R0 e रेस टू माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R0 अपॉन e. ऐसा कुछ होगा. तो मतलब आप इसको इस तरह से समझोगे, ऐसे आपके पास कोई पाइप है, देखो ऐसी, तो यहाँ पे मान लो कि आपके पास x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे मान लो कि आपके पास x इज इक्वल टू 2 है, तो इसकी रेडियस दोनों की आपको गिवन, ऐसा कुछ केस. इस रेडियस को आपने बोल दिया R1, इस रेडियस को आपने बोल दिया R2. तो इन दोनों के पास आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. ओके, सो एज पर दिस रेनॉल्ड्स नंबर का रेशियो फाइंड करने के लिए आपका आंसर हो गया कि R रेनॉल्ड्स नंबर Rn, एक्चुअली रेनॉल्ड्स नंबर Rn इज गिवन बाय रो वी डी अपॉन ईटा. सो यहाँ पे तो यह सब कुछ सेम ही रहेगा, रो ईटा, बट व्हाट अबाउट वी एंड डी? यहाँ पे आपको v को d में कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पे मान लो कि फ्लो कितना जा रहा है q. सो q इज इक्वल टू क्या होगा? A1V1 इज इक्वल टू क्या होगा? A2V2, ऐसा कुछ होगा. तो मतलब इसमें आपको v को कन्वर्ट करना है. सो v इज इक्वल टू q अपॉन एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर होगा. ओके, पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं q अपॉन π/4 d स्क्वायर. ओके, π/4 d स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका आंसर ए फाइनली हो जाएगा रो इंटू π/4 d स्क्वायर, सॉरी v इज इक्वल टू q अपॉन π/4 d स्क्वायर, रो इंटू q अपॉन π/4 d स्क्वायर इंटू d अपॉन ईटा. तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, देखो सी, तो d एंड d कैंसिल हुआ. तो इसमें से बाकी सब डेटा कॉन्स्टेंट है. सी,
रो क्यू अपॉन पाई बाई 4 एनीटा, ये सभी डेटा कैसा है कॉन्स्टेंट, ओनली डी वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। सो आर एन प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी हो जाएगा। तो आर एन डी तो प्रोपोर्शनल, तो क्या लिख सकते हैं आर एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इस केस में जो गिवन केस है उसमें आपको लिखना है आर एन प्रोपोर्शनल टू आर। तो दोनों जगह पे रेशियो ले लो चलो। सो आर एन 1 अपॉन आर एन 2, रेशियो अपोजिट लेना है तो आर 2 अपॉन आर 1। आर 2 कितना है, आर 2 आपके पास है आर 0 अपॉन ए है आर 0, ए क्या है आपके पास आर 0, आर 0 कैंसिल आउट, आंसर हुआ 1 अपॉन ई। सो दैट इज योर आंसर। सिंपल सा केस है बट इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो एवरीबॉडी नोट दिस।